हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जहां पे लास्ट हमने कवर किया था। सो वी हैड कवर्ड अबाउट बुद्धिज्म, जैनिज्म, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी। द मौर्यन डायनेस्टी lasted from 321 BC to 184 BC. Famous rulers of this dynasty: Chandragupta Maurya. His mentor was Kautilya, जिन्हें हम विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं. He belonged to the Maurya Kshatriya clan in accordance with Buddhist tradition. Indica was a work by Megasthenes, जो पूरी बात करता है मौर्यन रूल के बारे में. It is regarded as the most comprehensive treatise ever created on topics such as economics, politics, foreign policy, administration, military, warfare, according to Chanakya. So, according to the details mentioned in Indica, 4 governors थे who were overseeing separate provinces throughout the empire. Council of 30 people, made up of 6 committees of 5 people each. और ये सब इंचार्ज थे of the Mauryan government in Patliputra. In Megasthenes Indica, Patliputra is also referred to as Palipotra. अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में के बाद बात करते हैं बिंदुसार. अच्छा, यहाँ पे one thing I would like to clarify कि मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही कवर कर रही हूँ मेन चीजें that can be asked in the BPSC prelims examination. Okay, so only the crisp things I am covering here. अब बात करते हैं बिंदुसार की. तो बिंदुसार के में कुछ खास ऐसा जानने को नहीं है, but let's come to Ashoka. Now, he was also known by the names Amitroketes and Simseri in Jain texts like the Rajvalli Katha and Mudrasar in the Vayu Puran. Demachus, Syrian ambassador sent by King Antiochus. Dionysius, sent by Ptolemy II of Egypt. So King Ashoka is one of the most famous ruler of the Mauryan Empire. And he is known to come to power after murdering 99 of his brothers and only sparing one. तो आई थिंक इस पे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक मूवी भी है अशोका अब शाहरुख खान, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं. बट यस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंग हुई थी कलिंग की, जहां पे हाई लेवल पे ऑन ए वेरी लार्ज स्केल मैसेकर हुआ था, जिसका वर्णन यहाँ भी हो रहा है. हम देख सकते हैं 99 of his brothers and he only spared one. So Ashoka is defined as the ruler of Magadh in the Bhabru inscription. तो देखो ये सब ना टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वो कुछ भी Q&A बना देंगे कि अशोका का कहाँ पे मेंशन हुआ है और 4 इंस्क्रिप्शंस के नाम दे देंगे, तो भबरू ये स्ट्राइक करना चाहिए. ठीक है. मेजर इडिक्ट 13th makes reference to Kaling War, जैसा मैं बात कर रही थी, which took place in 261 BC. Important है. Following the Kaling War, Ashoka converted to Buddhism under the guidance of the monk Upgupta. Very very important guys. वो 4 नाम दे देंगे कुछ भी बना के कि अशोका ने जो बुद्धिज्म में कन्वर्जन किया था वो किसके गाइडेंस में रह के किया था, तो उपगुप्त. In Patliputra, Ashoka called the third Buddhist council. अब देखो यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात हो रही है, जो कि पाटलिपुत्र में अशोका had called in 250 BC with Tissa serving as the president. Who was the president? Tissa. अब फटाफट से आ जाते हैं सुंगा डायनेस्टी पे. The chief military officer of the Mauryan Empire was Pushyamitra Sunga. देखने से ही लग रहा है भाई साहब, गजबी पर्सनालिटी है ना. The last Mauryan emperor was overthrown by him. It caused Hinduism to remerge and led to the persecution of Buddhists. Patanjali served as the principal priest at 2 Ashwamedh Yagnas that were held during his rule, according to the Dhandev inscription from Ayodhya.
मेन कैरेक्टर इन कालिदास प्ले वॉज अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्रा के बेटे थे। फटाफट से आ जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी पे। गुप्ता डायनेस्टी किसने शुरुआत करी थी? श्रीगुप्त ने। देखो ये छोटे छोटे नाम ना फटाक से याद कर लो। श्रीगुप्त यहाँ, उपगुप्त कहाँ? वहां। कहाँ? बुद्धिज्म कन्वर्जन ऑफ अशोका। किसके नेतृत्व में? उपगुप्त। पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया था अंडर द मौर्यंस, जो कि डिसेंट्रलाइज हुआ गुप्तास के टाइम में। ये एक बहुत बड़ा नोटेबल डिस्टिंक्शन पाया गया है इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रोविंसेस मेड अप द एम्पायर, डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया था इनटू ईच प्रोविंस, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट्स वर कॉल्ड विलेजेस। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स जो कि हुए ड्यूरिंग द गुप्ता एरा, इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एज। सो जी फॉर गोल्डन, जी फॉर गुप्ता। क्या क्या एडवांसमेंट्स थे, आइए जानते हैं। Aryabhatta stated that the earth moves around the sun and rotates on its own axis. देखा? Geography. Varahamihir, a composition of Panch Siddhant and Brihat Samhit, is his most well-known work. भाई इसे तो as it is याद कर लो। वराहमिहिर अब क्या चीज का कॉम्पोजिशन है? पंच सिद्धांत एंड बृहत संहित, मोस्ट वेल नोन वर्क। फेमस प्लेस बाय सुद्रक, अब ये वही मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। सो फेमस प्लेस बाय सुद्रक लाइक मृच्छकटिका, वत्स्यांश न्याय सूत्र भाष्य एंड कामसूत्रा, विशाखा दत्त की मुद्राक्षस, एज वेल एज कालिदास की अभिजना शकुंतलम, वेरी वेरी फेमस है ये तो। विक्रम मोरवाशी, कुमार संभव वर रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो क्या बोल देंगे पता है? ये नाम दे देंगे और कह देंगे टेल ट्रू एंड फॉल्स में कि क्या ये सब लिखे गए थे ड्यूरिंग द गुप्ता एज, और आप फटाक से आंसर कर दोगे टिक। अब सम ऑफ द फेमस रूलर्स के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द सन ऑफ घटोत्कच, दैट इज सन ऑफ श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनको मिला था टाइटल महाराज धिराज, वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय हिम एज अ किंग। इनकी शादी किससे हुई थी? एक लिच्छावी प्रिंसेस से, कुमार देवी। तो इस ओकेजन को कमेमोरेट करने के लिए गोल्ड कॉइन्स वर इशूड। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल वर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस किंगडम। अब फटाक से आ जाता है समुद्रगुप्त के बारे में। एन इंस्क्रिप्शन बाय हरिसेन इन प्रयाग वाज डेडिकेटेड टू समुद्रगुप्त। ये इंस्क्रिप्शन को लिखा गया इन द संस्कृत लैंग्वेज, जो कि डिस्कवर किया गया बाय ए ट्रायर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ए ट्रायर। 4 अंग्रेजों के नाम लिख देंगे और कह देंगे हु हैड फाउंडेड द इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ए ट्रायर, ड्यू टू हिज पेट्रोनाइजिंग अप्रोच ड्यूरिंग द आर्ट्स, आई मीन टुवर्ड्स द आर्ट, सो माय बैड, ही वाज आल्सो नोन एज कविराज। देखो भाई, चंद्रगुप्त, महाराज धिराज, कविराज, ठीक है, ये सब इनसे जुड़े हैं। He permitted Meghvarman, the king of Sri Lanka, to build a monastery at Bodh Gaya. Very very important. इसको कहते हैं foreign alliances, foreign building international relations. इसको कहते हैं international relation. ये permit कर दिया भाई किसको? king of Sri Lanka को। कौन थे king of Sri Lanka? मेघवर्मन। क्या बोल दिया? To build a monastery. कहाँ पे? बोध गया। बस इतना ही जानना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड पे। तो लेजेंड राजा विक्रमादित्य, इनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। grew his empire through friendly ties and matrimonial alliances, but he also killed his brother and married his widow. Oh, a Chinese traveler named Fahian visited during his rule. So Fahian ने किसके टाइम विजिट किया? विक्रमादित्य के टाइम विजिट किया। He came up with the formation of Navratnas, a very very important. तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके टाइम ये 9 नवरत्न आए, फॉर्मेशन ऑफ नवरत्न। कौन थे? वररुचि, पनाक, वराहमिहिर, धन्वंतरी, घटकरपरा, कालिदास, शंकु, अमर सिम्हा, वेतल भट्ट। देखो अगर ये याद हो जाए तो गुड है, नहीं तो एक थोड़ा सा आइटेटिक वे में ध्यान रहना चाहिए कि अगर इनमें से कुछ नाम आ जाए, फ्लैश कर जाए, सो यू आर इजीली एबल टू आइडेंटिफाई।
कुमारगुप्त. He also went by the name महेंद्रादित्य. भाई देखो कितना सिंपल है ये याद रखना. चंद्रगुप्त क्या क्या मिला था? महाराजधिराज, कविराज. विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड. उसके बाद कौन? कुमारगुप्त, जिनको कहते हैं महेंद्रादित्य. तो सब राइमिंग से है, ठीक है. विक्रमादित्य के बाद महेंद्रादित्य. He established Nalanda University, which developed into a hub of learning. Very, very important. Nalanda University को किसने establish किया? कुमारगुप्त जी ने. अब इसके बाद आ जाते हैं स्कंदगुप्त. He was the last of the great kings, and after him the empire started to fall apart. Sudarshan Lake was restored thanks to his administration, according to the Junagadh inscription. तो जूनागढ़ inscription कहती है कि भाई जो सुदर्शन लेक है वो अपनी अच्छी स्थिति में, बेहतर स्थिति में आ सका because of all thanks to this person. It was originally constructed by the Mauryas. तो यानी Mauryas ने कंस्ट्रक्ट किया था, बट वो dilapidated कंडीशन में हो गया था. Dilapidated का मतलब होता है एकदम नेश नाबूद वाली कंडीशन में आ जाना, झरझर. एंड देखो एक इंग्लिश का वर्ड भी जानने को मिल गया. हाउ गुड इज दैट, राइट? तो इसको वापस से बेहतरी किसने करी? स्कंदगुप्त जी ने. And the Gupta dynasty's final monarch was Vishnugupta. ये हो गया हमारा गुप्ता डायनेस्टी. देखा कितना फटाफट से कवर हो गया. अब आ जाते हैं पाला डायनेस्टी पे. So the dynasty's first ruler was Gopala. He was chosen democratically. Gopala founded the Buddhist Mahavihar of Udantipur, which is currently located in Bihar Sharif. ठीक है. इन्होंने जब कंट्रोल ले लिया कन्नौज का, सो धर्मपाल अज्यूम द नेम उत्तरापथ स्वामिन, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ. देखो धर्मपाल अज्यूम द नेम उत्तरापथ स्वामिन, नाम ही में मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ. धर्मपाल फाउंडेड विक्रमशील यूनिवर्सिटी. भाई समझ में आ गया? धर्मपाल ने विक्रमशील यूनिवर्सिटी को फाउंड किया. नालंदा यूनिवर्सिटी किसने किया था? स्कंदगुप्त ने. ठीक है. They were adherents of both the Tantric and the Mahayan schools of Buddhism. They also built numerous temples, with Konark Sun Temple being the most notable. देखो Konark Sun Temple build करा, very important. खत्म हमारा. अब हम शुरू करने वाले हैं medieval history of Bihar. Okay. अब during the Gupta period, which began in the middle of the 7th or 8th century AD, बिहार ने बहुत ही बढ़िया अपना great history enjoy किया, that lasted until nearly all of northern India was conquered by invaders from the Middle East. अब इस समय तक आते आते गुप्ता डायनेस्टी पेरिश हो चुका था. अब medieval history of बिहार को हम कैसे याद कर सकते हैं? By the foreign invasions and dynasty that ruined the glory of Bihar. यानी हम कह सकते हैं मिडीवल हिस्ट्री से शुरुआत हो गई थी रूवन की. मिडीवल टाइम्स में बिहार ने अपना प्रेस्टीज खो दिया फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव. मुगल पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ अनरिमार्केबल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. अब देखो यानी इससे पहले का जो समय था, इट वाज फुल ऑफ कल्चर, म्यूजिक, कंस्ट्रक्शन, पेट्रनेज, अलायंसेस, रिलेशंस, ये सब. लेकिन इस कहते हैं ना क्षति होने लगी फ्रॉम दिस एरा, क्योंकि यहां से क्या इमर्ज हुआ? अनरिमार्केबल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली. एंड द ओनली रिमार्केबल पर्सन ऑफ दीज टाइम्स इन बिहार वाज, क्योंकि हम सब कुछ बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना, सो द ओनली रिमार्केबल पर्सन ऑफ दीज टाइम्स इन बिहार वाज शेर शाह, जिसको शेर खान सुर भी कहते हैं, हु वाज एन अफगान. चलो सबसे पहले बख्तियार खिलजी. He was one of Qutbuddin Aibak's general. Sur dynasty. Many monasteries and bihars were demolished by him. Lo bhai. Bakhtiyarpur was also established by him. He died in Bihar and his mausoleum is also built in Bihar Sharif. Majority of Bihar was governed Majority of Bihar was governed by Turks, while the slave dynasty was in power. So there was constant combat to regain authority. ठीक है.
Rulers of Lakhnauti and Tirhut waged strong opposition. Throughout the Tughlaqs' control in Bihar, the Nohani dynasty grew to be a significant one. Jagdishpur Fair was started by Phulchand, a monarch of the Chera dynasty. During the Middle Ages, it was the most significant dynasty in Bihar. During Sher and Sher Shah's administration, Bihar had a time of greatness. अब फटाफट से आ जाते हैं शेर शाह. बस इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है क्या? शेर शाह सूरी's reign was a time of greatness. Sher Shah defeated Humayun 2 बार. Once at Chausa in 1539 AD and then again at Kannauj in the present state of Uttar Pradesh or UP, claiming the title of Sultan-e-Adil in the process. तो यानी शेर शाह सूरी को एक टाइटल मिला सुल्तान-ए-आदिल का. Sher Shah ने established किया control over a realm through conquest that once more reached as far as the Punjab. He was renowned for being both a fierce warrior and a great administrator, following in the footsteps of Ashoka and the Gupta kings. He had a very efficient administration. His revenue model was later adopted by Akbar. बहुत सारे land reform initiatives लेके आए. Today's Sasaram, that is Sher Shah's Maqbara, contains the remnants of a massive mausoleum he constructed for himself. इन्होंने ग्रैंड ट्रंक हाईवे बिल्ड किया गाइस. ग्रैंड ट्रंक हाईवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. लेटर अकबर ने एक्सपैंड किया अपना किंगडम बाय एनेक्सिंग बंगाल एंड बिहार, एंड द फर्स्ट मुगल एम्परर स्worn in at Patna was Farrukh Siyar. As the Mughals fell from power, the Nawabs of Bengal came to rule over Bihar. Patna was rebuilt and named Azimabad by Subedar Azim Ush Shan, who was the grandson of the Mughal Emperor Aurangzeb Azim. समझ आई? पटना को रीबिल्ड किया गया. क्या नाम रखा गया? अजीमाबाद. किसने रखा? एक सूबेदार. क्या नाम? अजीम उश शान. किसके ग्रैंडसन थे? मुगल एम्परर औरंगजेब अजीम के. Following the Battle of Buxar, the British effectively took over control of Bihar. Now, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से. तब तक वापस से देखना पूरा वीडियो फिर क्विक रिकैप. ध्यान में रखना कहाँ पे मैंने किस किस पॉइंट पे एम्फसाइज की हैं चीजें. एंड नेक्स्ट वी गोइंग टू मीट वेरी सून विथ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार. So, अगर पसंद आया content and you felt that it was useful, like, subscribe, and do not forget to comment. Anything that you feel like, some suggestions, some ideas, most welcome. So, stay tuned, guys. All the best.